Welcome back, dear students of BGMT second semester. Here today we will be discussing about the paper 5 Introduction to Journalism Unit 1, and this is your lecture 1 today. So the topic which we will be covering about is to understand the journalism, its origin and growth. First of all, let us know that in the previous semester we did that introduction to mass communication. As we have done that mass communication is a set of message that we have to express to the one people or more than one people to the group. That is the mass communication. In Hindi we call it as Jansanchar. But here, introduction to journalism is quite different from other things. First of all, let us discuss that what do you mean by journalism. Journalism जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पत्रकारिता. Now journalism, it is a job of collecting news and writing about it. पत्रकारिता जो है, जहाँ पे हम अपनी न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो जर्नलिज्म इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूज़, प्रिपरेशन and distribution of news and related contemporaries and feature materials through such print and electronic media as well as newspapers, magazines, books, blogs, webcast, podcast, social networking and social media sites like email, as well as through we can also write the script in radio, motion pictures and television. So here something that we collect the news and then we start preparing about it, what are the things needed, what are the evidence needed in it, and then we start writing that news and then distribute the news among the various medium. The word journalism was originally applied to the reportage of current event in print form. मतलब जो शब्द आपका जो जर्नलिज्म वर्ड है, ये मूल रूप से क्या विशेष बताता है कि जो भी आपका समाचार है उसको वर्तमान घटनाओं में रिपोर्टर्स किस तरीके से लागू करते हैं अपने प्रिंट मीडिया में, स्पेसिफिकली इन न्यूज़पेपर्स. क्योंकि नेचुरल है बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, जब हम बात करते हैं तो हमें कोई भी खबर पुरानी नहीं रखनी होती, हमें अपडेट होकर के चलना होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी करंट हैपनिंग है, जो भी करंट इवेंट है, उसको कवरेज करके हम उसकी न्यूज़ कवरेज करेंगे, फिर उसको उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर प्रिंट फॉर्म में हम उसे स्पेशली इन द न्यूज़पेपर फॉर्म में हम उसे पब्लिश करते हैं. बट विद द एडवेंट ऑफ रेडियो, television and the internet in 20th century, the use of term broadened to include all printed and electronic communication dealing with current affairs. नेचुरल है जो 20वीं अगर हम शताब्दी की बात करते हैं तो जिसमें जो और माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न या फिर इंटरनेट, तो उसमें क्या हुआ, जो वर्तमान चक्कर में आपको सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए इतना वक्त नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार को शामिल करने के लिए इसमें क्या सारे करंट अफेयर्स से हम डील अप करने लगे. जितने भी आपके शब्द का उपयोग है व्यापक हो गया. कम्युनिकेशन इस तरीके से होने लगा कि दैट एवरीथिंग शुड बी डील अप इन द करंट अफेयर्स फॉर्म so that everything will be up to mark. Now we move on to the history, that is the origin and the growth of journalism, किस तरीके से ये शुरुआत हुई. And here we will be learning few basic important points, important information which is totally related to the journalism. जो पत्रकारिता से संबंधित कुछ ऐसी इसमें इम्पॉर्टेंस है जो आपको आपकी सहायता करेंगी कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस फॉर्म कर सकें.
So first of all, let's start that Joseph Pulitzer was the father of journalism. This is a point that you have to remember कि जो Joseph Pulitzer है, he was the father of journalism. And the journalism came from, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? The earliest form of journalist product was a news street circulated in ancient Rome. Ancient Rome में शुरुआत हुई. The Acta Tirona said that the date from before 59 BCE, जो जहाँ से शुरुआत हुई है वो एंशियंट रोम से हुई है और एक्टा डोना से. एंड द एक्टा डोना रिकॉर्डेड इम्पॉर्टेंट डेली इवेंट्स. ही वॉज द पर्सन और दिस पर्टिकुलर मीडियम जहाँ से सारे इम्पॉर्टेंट डेली इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे, फिर उसको पब्लिकली स्पीच के थ्रू उसे सेंड किए जाते. एंड इट वॉज पब्लिश्ड डेली एंड हंग इन द प्रोमिनेंट प्लेसेस. फिर उसको बाकायदा एक माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको पब्लिश किया जाता था, जो डेली प्रोमिनेंट प्लेसेस में सेंड किया जाता. इन चाइना ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी, अ कोर्ट सर्कुलर कॉल्ड बाओ और रिपोर्ट was issued to the government official. This gadget appears in various forms and under various names, more or less continually to the end of Qing dynasty in 1911. First regularly published newspaper appeared in German city and Antwerp about 1609. Again, a very important issue. So whatever the important topics which I am discussing are all consist questions, MCQs types of questions are being generated from it. The first English newspaper, the Weekly News, was published in 1622. One of the first daily newspaper, the Daily Courant, appeared in 1702. So the growing demand of newspaper owing to the spread of literary and introduction of steam, and when electric driven presses caused the daily circulation of newspapers to rise from thousands to the hundred of thousands and eventually to the million. So this was the circulation. जो न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन था वो इतना डिमांडिंग में था, इतना ग्रोइंग डिमांड में था कि दैट इट वाज स्प्रेडिंग ऑन द डेली बेसिस एंड द न्यूज़पेपर वाज राइजिंग फ्रॉम 1000 टू द 100 ऑफ, मतलब हज़ार, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर मिलियन तक पहुंच गए इवेंचुअली. सेकेंड मीडियम ऑफ जर्नलिज्म वेयर टू पब्लिश द न्यूज़ इज magazines, which had started in 17th century as learned journals began to feature opinion forming articles on different affairs, such as through Tatler 1709 to 18 and Spectator 1711 to 12. Appearing in the 1830s were chief mass circulation magazines. तो ये बहुत 17th सेंचुरी में किस तरीके से मैगज़ीन्स का जर्नल जो था वो बिगैन अप हुआ, और फिर किस तरीके से एवरी टाइम दैट इट वाज रीजनरेटिंग, राइट, जो करंट अफेयर्स आर्टिकल्स जो दिए जाते हैं मैगज़ीन्स में वो बहुत तेज़ी से अपीयर्स होने लगे और बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होने लगे. एंड इट एम्स वाज, व्हाट वाज द एम ऑफ दैट मैगज़ीन, कि किस तरीके से हाउ टू एजुकेट द पब्लिक, how to let them know about the current affairs, what's going on in the world. So the cost of large scale news gathering led to the formation of news agencies, organization that sold the international journalist reporting to many different individual newspapers and magazines. अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी, so in the 20th century the satellites and the later the internet used for the long distance transmissions of journalist information.
तो 20वीं सदी में इट वॉज मार्क, देयर वॉज अ सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जर्नलिज्म को एक सेंस दिया गया कि एक ही प्रोफेशनलिस्ट है। एंड देयर वर 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो ट्रेंड में आए जर्नलिज्म के रूप में। दोज वर इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, कि जो काम करने वाले पत्रकार हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए कंपनियां खोली जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। सेकंड पॉइंट, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन फॉर जर्नलिज्म, पत्रकारों के लिए एक स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल BJMC, MJMC, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इस तरीके के कोर्स इन्हीं चीज़ों के लिए बने एंड दैट इज वाज नोन एज स्पेशलाइजेशन कोर्स। देन थर्ड, अ ग्रोइंग लिटरेचर डीलिंग विद हिस्ट्री प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो अगर हम देखते हैं अपनी सेंचुरी के हिसाब से, तो जो एक ग्रोइंग लिटरेचर है, हर साल जो बीतता है तो उसका एक बैकग्राउंड रिकॉर्ड हो जाता है। तो अ ग्रोइंग लिटरेचर डीलिंग विद द हिस्ट्री, उसकी क्या हिस्ट्री रही होगी, उसकी क्या बेसिक प्रॉब्लम्स रही होंगी, एंड व्हाट वर द टेक्निक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और आगे हमें क्या ज़रूरत है उनके लिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डीलिंग अप होनी चाहिए ग्रोइंग लिटरेचर के लिए। देन फोर्थ पॉइंट, एन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ जर्नलिस्ट, क्या सेंस से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोशल इश्यूज़ में, कि जो एक पार्ट है जर्नलिस्ट का, जो एक पार्ट है दैट इज़ टू इंक्रीज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। देन जेम्स ऑगस्टिन हिक्की was an Irish who launched the first printed newspaper in India. This is a very important point to be noted, that James Augustus Hickey was an Irishman who launched the first printed newspaper in India, known as the Hickey's Bengal Gazette. Then if we talk about the history or journalism that was started in India, भारत में किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन इंडिया वाज हिकीज बंगाल गैजेट, as I told before also, which was started in 1780 under the British Raj by James Augustin Hickey, and other newspapers such as the India Gazettes, the Calcutta Gazettes, the Madras Courier in 1785, the Bombay Herald in 1789 soon followed one by one after the other. एक के बाद एक ये सारे न्यूज़पेपर धीरे धीरे लॉन्च होते गए, पब्लिश होते गए। फर्स्ट जर्नलिस्ट इन इंडिया, अगर हम फर्स्ट पत्रकार की अगर हम बात करें जो इंडिया में था, अ नोन पर्सन एंड इट वाज नेम्ड एज जेम्स हिक्की, स्टार्टेड द पेपर आफ्टर सीकिंग परमिशन ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी। बहुत आसानी से उनको ये परमिशन नहीं मिली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब उन्होंने अपनी परमिशन ली कि वो अपना बंगाल गैजेट के नाम से अपना पेपर को यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं इंडिया में, एंड ही गेट द परमिशन, एंड दिस पेपर वाज कॉल्ड एज द बंगाल गैजेट और द कैलकटा जर्नल एडवर्टाइजर। सो बोथ द नेम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, बंगाल गैजेट्स और द कैलकटा जर्नल एडवाइजर। देन वी मूव ऑन टू द हिस्ट्री और ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म। जो हिस्ट्री है या फिर अगर हम बात करते हैं जो ग्रोथ है जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की, उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या कारण है, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म स्पैन्स द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, किस तरीके से टेक्निक्स हैं जो नए नए तरीके से, अब अगर हम देखते हैं तो कितनी नए नए तरीके से चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है और आगे प्रोसेस में चल रहा है कि हम अपने न्यूज़ को अब अपने मोबाइल तक पे भी देख सकते हैं, राइट। सो ये टेक्निक्स हुई, ट्रेड्स हुए, मार्क्ड बाय द एडवेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स फॉर गैदरिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट हैज़ कॉज्ड as one history of journalism surmises. The study increased the scope of news available to us,
अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन हुआ कि जो स्कोप है न्यूज़ का, इट वाज सो अवेलेबल एंड इट वाज इन अ वेरी स्पीडी ट्रांसमिटेड कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ता चला जा रहा है. एंड बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस इट वाज इन्वेंटेड, वर्ड ऑफ माउथ वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़. नेचुरली जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था बाय ऑगस्टन हिकी, द बंगाल गैजेट, उसके पहले जो एक न्यूज़ का चलन था या कोई भी खबर अगर बताई जाती थी, द सोर्स ऑफ न्यूज़ वाज ओनली द माउथ, द वर्ड्स ऑफ माउथ. सिर्फ एक मुंह से शब्दों को बोल दिया जाता था और उसे भी एक सोर्स माना जाता था उस टाइम पर. देन रिटर्निंग मर्चेंट्स, sailors and travelers brought new bark to the mainland, and this was picked up by paddlers and traveling players and spread from town to town. फिर उसके बाद जो रिटर्निंग मर्चेंट्स हैं, बाहर जो काम करते थे, जो सेलर्स होते थे, नाव के द्वारा जो जाते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो न्यूज़ को अपने मेन लैंड तक लाते थे. एंड दिस वॉज दे पिक्ड अप बाय द पैडलर्स एंड ट्रैवलिंग प्लेयर्स टू स्प्रेड फ्रॉम टाउन टू टाउन. फिर एक टाउन से दूसरे टाउन तक वो अपनी खबर को पहुंचाते थे. एंशिएंट स्क्राइब्स often wrote this information down. This transmission of news was highly unreliable and died out with the inventions of printing press. फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, उसके बाद ये जो चलन था कि ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम टाउन टू टाउन या वर्ड माउथ, ये कहीं ना कहीं दब गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में वो इतनी पावर आ गई कि सिर्फ आप प्रिंटिंग करो और पेपर को पब्लिश करो एंड देन सेंड आउट करो हर जगह. तो इट वाज मोस्ट पॉपुलर. न्यूज़पेपर एंड टू द लेसर एक्सटेंट मैगजीन्स, और जो छोटी मोटी मैगजीन्स भी होती थी उसके द्वारा भी न्यूज़ को अवेलेबिलिटी मिली और लोगों ने जाना, और फिर उसी का चलन चल गया. एंड हैव ऑलवेज बीन द प्राइमरी मीडियम ऑफ जर्नलिस्ट सिंस द 18th century. फिर उसके बाद धीरे धीरे रेडियो एंड टेलीविज़न का ट्रांसमिशन हुआ इन 20th century. एंड नाउ वी आर लिविंग इन द 21st century and we all know that internet is one of the most important medium और latest technique medium जिसके द्वारा आपको सारी informations बहुत आराम से मिल जाती है. If you are having a proper internet Wi-Fi connection, तो आपके पास मोबाइल है, you just download the apps of the channel, download the printing press newspapers, और उसी के द्वारा आपको सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड के सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली वे में मिल जाती है. तो किस तरीके से जर्नलिज्म ने अपनी पकड़ पकड़ी है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द 21st century, कि क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या उसकी ग्रोथ रही है, what was the origin behind it of the journalism and the growth. I have discussed everything here in a very clear and very simple language. I hope it's all clear to everyone. That's all for today. In the next video, I will be uploading the next topic. That was the lecture 2. By the time you just go through this video and understand the main important concepts or MCQs types of questions, which will be very helpful to you. Thank you, everyone.